Hey, given me. So, Karen, good morning to all of you. So, let's start with our accounting for managers. So, actually, whenever accounting is there, most of you must start and you must finish at accounting only. But this is my responsibility to travel you on the boat of accounting to the work of manager. That's what my requirement is. So it is accounting for managers. Don't miss that. So managers are not accountant. That we all know. Managers are managers. So then in that case, how much they should know the account and why they should know the account. That is what the first question comes. And why that syllabus is put into it when the person is going to be a manager. It is required because ultimately it is something you all know ABCD, 26 alphabets. You require to write ABCD? No, but without that we can't write anything. Now, when we say batch A has got a significance now. But at the time of learning, it was not mentioned batch A, batch B, batch C. It was there A for Apple or A for Amitabh Bachchan. Either way of learning was there. Right. So actually, Amitabh Bachchan is AB of the film industry. Right. That's the way it is there. So we have to understand what these alphabets are. But basic understanding is that when you are doing something, it must be recorded. Recording purposes for number of reasons. And at least two prime reasons. Internally, you require to know what exactly you have done and how the progress has taken place. And even external should know that what exactly you are doing. And especially when it comes for a business activity where various stakeholders are there. One, of course, organization itself is a stakeholder. Complete organization is a stakeholder. Followed by customer is a stakeholder. Competitor is also a stakeholder. Pepsi keep on peeping on Coke. What exactly they are doing? कैसा चल रहा है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी? कैसा उनका सेल्स है? कभी कभी तो अपने बोर्ड मीटिंग में वो अपने बारे में कम बात करते हैं, औरों के बारे में ज्यादा बात करते हैं. That's the way it is. So they should know. Even government requires to know that are they doing fair deal? Whatever the tax has been imposed, are they really paying tax as per the norms or not? Right or not? और उसके बाद कहते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है. व्हाट इज दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? CSR. वेरी गुड. अब आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर CSR क्यों दें? बोला आप किस चीज का पेमेंट कर रहे हो? हैव यू पेड फॉर द एयर which you are taking? Have you paid for the environment? Answer is no. Then who gives you right to pollute it? Right or not? So you have to have a responsibility. So you'll find out the subject is mixed like that. So we have to understand that how a fair but progressive competitive deal could be possible. And a researcher will also be like to what exactly it is there. Have you got some that norms which will take care of any kind of mistake on its own, so-called double entry system? By default, it will take care of it. What is double entry system? It is based on your corporate formations related to independent organization, separate legal entity. Have you done separate legal entity? What is separate legal entity? The company stands as the company is a separate legal entity. It means that it can be sued and it can. It's basically a legal person. Company itself is a legal person. You may be very proud feeling I am a shareholder of it like Mukesh Ambani. Oh, Ajim Premji, you are feeling I am a shareholder, but actually company acknowledge you as a liability. Yes or not? Right? And it is a basically big, our philosophy of life also is there. We keep on worshipping God and we keep on praying that तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना? पढ़ा होगा आप लोग. तेरा तुझको अर्पण means whatever you owns, you owes. Whatever you earn, you distribute. Okay, even distribution. That's what you look into. There is a path. I'll come to that financial statement. So this is one thing.
which is financial statement we will create. Financial statement, we will look into that, how it is going to work. But how to reach to financial statement? What exactly you have to count, and you have to count everything and every happenings. But subject to that, that limitation is there, which you must have gone through with the basic accounting, that it has to be have a monetary value, monetary impact. Yes or not? I am an honest manager. Unfortunately, you are not able to capture my honesty. Now, because of my honesty, because of my dedication, performance is going to be better, which will turn into a better profitability. But आप काउंट नहीं कर रहे उसको, राइट? मेरे सिंसियरिटी को काउंट नहीं कर रहे हो, because it is not converted directly into monetary part. There are certain studies which is actually looking into behavioral component of it. These are the limitations of accounting, which says that they are very blind into nature related to counting only the numbers. नाम ही है काउंटिंग, काउंटिंग के बाहर वो निकल नहीं पा रहे हैं. So, but how to really take care of that? That is what required. So, every transaction they capture, and that when they capture the transaction, they make entry. That is called as journal entry. Not required as on date. Yes, debit credit is there, and I think through peer learning you can understand. Science वाले को कॉमर्स वाले बता दीजिएगा कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, बता दीजिएगा कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है. 3 into 2 6 के बॉक्स में पूरी अकाउंटिंग कंप्लीट. यस और नॉट? अब ये आपको पहचानना, यही 6 घर के अंदर डालना है. ये डाइस की तरह है, आप जितनी बार फेंकोगे 1 से 6 के बीच में ही नंबर आएगा, राइट? इसी तरीके से उस पहचान में कई बार गलती हो जाती है, जर्नल एंट्री मिस्टेक्स होते हैं, उसको एरर कहते हैं. फिर एरर को रेक्टिफाई करते हैं. और बहुत लाइफ का भी स्टार्ट है कि वी कांट कट इट. जो समय बीत गया वो फिर सुधारा नहीं जा सकता. क्या करते हैं? दूसरी एंट्री पास करते हैं, है ना? ऐसा नहीं ऐसा काट के लिख देंगे, दूसरी एंट्री पास करते हैं. यही है एंट्री का सिस्टम. लेकिन जब एंट्री हो गया, एंट्री आपके 1 2 एंट्री 5 एंट्री 10 एंट्री हो तो फिर भी कंट्रोल किया जाए. एंट्री तो thousands and thousands एंट्री. व्हाट इज द मॉडर्न एज ऑफ एंट्री? जो एंट्री कर रहा है उसको मालूम नहीं है दे आर मेकिंग जर्नल एंट्री. You go to any mall and look into the reader, रफ रीडर होता है ना, कोई एक आप बिस्किट खरीदे, कोई ब्रेड खरीदे, कोई कुछ खरीदे, और एक रीड करता है. रीड किया, स्टेटमेंट चला गया, एंट्री हो गई, जर्नल एंट्री कंप्लीट. पता ही नहीं है. देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है. एंड दैट्स व्हाई even if you know journal entry, you are not required to meet, because that can be taken care by just a simple person putting on the light. और जर्नल एंट्री के बाद आप इसको एक क्लब करोगे तो क्या बनाएंगे? लेजर. वो भी ऑटोमेटेड है, ईआरपी इन्वायरमेंट है. द मोमेंट डेट चेंजेस, लेजर पोस्टिंग इज डन ऑटोमेटिकली. यहां से भी यात्रा आगे निकल गई. आपके यहां तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेजर पोस्टिंग हो गया, राइट? मंथली बनाओ, वीकली बनाओ, डेली बनाओ, जैसे बनाना बनाओ. टाइम फ्रीक्वेंसी इज इमेटेरियल फॉर अस. देयर इज नो कंपल्सन. हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट, दैट इज लेजर पोस्टिंग. एंड एज ए मैनेजर आई डोंट रिक्वायर टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ लेजर and what way you are going to make ledger, because ultimately ledger is nothing but it is the summarized statement, right? आपको वीकली करना है, वीकली कर लो. बैंक में तो डेली होता है. इसलिए ये टाइम फ्रेम के किसी कह सकते हो छोटे से ट्रैप में ना पड़े. I decide how it is going to be there. But certainly what happens to maintain a kind of uniformity, lot of guidelines are there. Those guidelines we have to understand, and time and again guideline will keep on coming from different institutions, and especially how it has to be maintained. When our country got independence, immediately this challenge was faced that we have to manage it effectively, and for that, though then when constitution was not implemented, they established an institution known as Institute of Chartered Accountant of India 1949 through Parliamentary Act. हमारा पार्लियामेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कब इंप्लीमेंट हुआ?
1950, ठीक है। उससे पहले हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन बन के तैयार हो गया था. वी वर वेरी क्लियर इनटू इट. And not only that, company law was working at that point of time also. And then they realized that no, banking operation is different, and banking operation, they created a separate banking law called Banking Regulation Act 1949. देखो कितनी बड़ी बात है. आप अगर अपने इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू one side, even in the business side also you find out the progress has been there, and slowly it was realized we require our own company act, and company act got created finally in 1956. पढ़ते थे ना. इसका मतलब कि उस समय भी काफी एक्टिवली काम हो रहा था इस पे. ये नहीं था कि सिर्फ हम फ्रीडम स्ट्रगल में करके खो गए थे. नो, एवरी विंग ऑफ आवर country was working very effectively. Even if you find out financial institution, 1948 IFCI Act was there. 1948 Public Property Act was there. तो स्टार्ट करो आप. अगर इसको पढ़ना तो आप देखो कि नहीं यार, we were also knowing how it has to go, how it has to move, how fund has to circulate, how it has to be established, public sector unit has got created, and we started working into it. It was the need of that time. Then after that what happened? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पार्ट बताएं. डबल एंट्री सिस्टम उस समय भी था जो कॉर्पोरेट थे, लेकिन सिंस पब्लिक सेक्टर सिस्टम डिडंट हैव टू रिपोर्ट एनीबॉडी एल्स, सिंगल एंट्री सिस्टम पे काम शुरू कर दिया. राइट? इसका मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम वाज बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ इट दैट इट इज ऑल इन हाउस. क्लियर? दैट्स द वे प्रोग्रेस हैज टेकन प्लेस. And today we know that IT intervention, how it is going to make your accounting more robust, more powerful, and at par with the rest of the world. Clear? वो आपके फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट में काफी केयर कर रहा है, देख रहा है. जब लेजर पोस्टिंग हो गई तो आप क्या करते थे पहले पुराने जमाने में, या अभी भी, एक आप ट्राई कर लेते थे कि आपका सारी चीजें एंट्री सही है नहीं है. इट वॉज मियर ए वेरिफिकेशन, ऑटो वेरिफिकेशन, सेल्फ वेरिफिकेशन. देख लो. अच्छा, इस वेरिफिकेशन में ऐसा नहीं था कि गलतियां नहीं होती थी, गलतियां होती थी और गलतियां पकड़ते थे, और कभी कभी थक के इतना हार जाते थे कि सस्पेंस कर देते थे. छोड़ो यार, डालो इसको. विच इज नॉट एन अकाउंट एट ऑल. सस्पेंस इज ए सरेंडर अकाउंट. ऐसा नॉट. कॉमर्स वाले आप लोग बहुत हैं. मेरी अंडरस्टैंडिंग कॉमर्स में अगर गड़बड़ हो तो बताइए. केमिस्ट्री वाला कॉमर्स बोल रहा है. Suspense account. But anyway, whatever you do, ultimately, now these steps are meant only for internal consumption, not for external one. This is kitchen of the company, which you prepare. But when you serve on the table, it has to be in a fine bowl, in the plate. And that you make is your financial statement. Right or not? So I am not going to discuss your kitchen, how to cook. I am going to discuss what is going to be served. Right? So financial statement has got, first one is income statement. This is international word. Domestic word had been used decade after decade called profit and loss account. P&L account. But what is international term? What is a global term? Even now we are also international. We also use the same word. What we use? Income statement. Right? Second statement is balance sheet. Second is balance sheet, which is balanced. Okay? Income statement, balance sheet. What is income statement? Income statement is videography. What is balance sheet? Still photography. As on date. Right or not? Snapshot है. कौन सा? Am I clear? Balance sheet is a snapshot. And
income statement is running commentary for the period ending. One is point of time concept. Which one is point of time concept? Balance it. And which one is period concept? इनकम स्टेटमेंट. और जब पीरियड होगा तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों बताना पड़ेगा. फ्रॉम विच डेट टू विच डेट मीन्स थोड़ा सा पीरियड टाइम फ्रेम आना चाहिए. और वो टाइम फ्रेम कैसा होगा? तो वो टाइम फ्रेम नॉर्मली एनुअल. क्या हुआ? एनुअल प्रेजेंटेशन. Thus a time frame has to be there. Clear? एक पुरानी कहावत है कि कोई अपने दही को खट्टा नहीं कहता, है ना? ये कहावत है ना, अपने प्रोडक्ट को क्यों खट्टा कहेंगे? तो जो अकाउंट बनाया है, जैसे दूसरा भी कह सकते कहावत बनाया जा सकता है. कोई स्टूडेंट, ठीक है, उसे की मान्यता है अगर ऑडिटेड रिपोर्ट नहीं है, आप लाख चीख चीख के कहते रहो, वैलिड नहीं है. क्लियर? तो ऑडिटिंग इज ओनली ए वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन. वेरिफिकेशन भी नहीं, वेरीफाई करते नहीं करते ऑडिटर जाने, वो अपना सिग्नेचर कितने जेन्युइनली शेयर कर रहे हैं, कितना इफेक्टिवली शेयर कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन ऑडिटर. बट इट इज मैंडेटरली रिक्वायर्ड. नो एनुअल रिपोर्ट विदाउट to go to public, outside world, public, competitor, anyone. How we understand the happening of a through their annual report. This is the way. So question arises here, when company is actually coming through annual report comes at, then in that case from 1 year to another year in between, any public and any person is free to gaze about the company. हम अपना ख्याल बनाते रहेंगे, अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये कंपनी ठीक चल रही है, नहीं चल रही है, और तरह तरह के न्यूज थे और होते रहते थे. Result in company started making it, can it be possible in a higher frequency we can reach to public? So it was requirement was there, can we have 6 monthly report? 6 monthly report also got a kind of a mandatory requirement. मतलब बोला यार इसमें ऑडिटर का चक्कर मत डालो फिर, because auditing is a cost for company. And result क्या हुआ? तो 6 मंथली रिपोर्ट जो आता है वो ऑडिट की जरूरत नहीं है, एनुअल रिपोर्ट में ऑडिट मैंडेटरी है. राइट? बन गया. जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के बेस पे काम होने लगा, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट बिकेम comparatively very comfortable and click of mouse, especially those organizations who had already gone for ERP, enterprise resource planning, where it says that any point of time you can have FSD. FSD stands for financial statement generator. जब चाहो जनरेट कर लो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे. और कुछ प्रोसेस ऑटोमेट हो गए, जो टफ प्रोसेस थे आपने सिस्टम फीड कर दिया, वो अपने आप काम कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, अब आपको करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम करेगा. उसको मालूम है आपने एसेट फीड कर दिया है, एसेट का वैल्यू डाला है और परसेंटेज मेथड डाला हुआ है, उसमें आपका सिस्टम जनरेट कर. जब आप जनरेट करोगे उस समय तक का डेप्रिसिएशन फिगर आ जाएगा, कैलकुलेशन दे देगा, फिगर दे देगा. तो बोला क्यों नहीं और फ्रीक्वेंसी, सो दैट जितनी जल्दी आप बुलेटिन दोगे उतना कम आपके बारे में कोई गेज करेगा, है ना. मैं खुद बता रहा हूं, मैंने बता दिया आपको कि भाई मेरा रिपोर्ट ये है, क्वार्टरली रिपोर्ट, हर क्वार्टर में आपको कोई रिपोर्ट दे रहा हूं. क्वार्टरली इज येट नॉट मैंडेटरी, बट इट हैज बिकम अ प्रैक्टिस.
lot of information is going to get shared to the public domain, so that company should have a very clarity what exactly they are doing. It may have a good or bad impact, because we can keep on now analyzing on quarterly basis what kind of performance. The actual purpose of the unit 3 is analysis. Look into the syllabus. This is analysis. हम फाइनेंशियल हेल्थ कोड जान रहे हैं, और कभी कभी जरूरत जल्दी फास्ट हो जाए, जितना क्विक हो जाए। आप जानते हैं ये इट्स फाइनेंशियल हेल्थ की तरह, ये ह्यूमन हेल्थ की तरह है। जब कोई पेशेंट काफी सीरियस होता है तो आप देखते होंगे उसके कई टेस्ट बड़े फ्रीक्वेंट होते हैं। कभी कभी कुछ ब्लड टेस्ट सुबह भी होता है, शाम में भी होता है, और उस बीच का डिफरेंस देखा जाता है क्या हो रहा है। राइट, एग्जैक्टली दैट्स अ वे फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी आल्सो कैन बी viewed exactly on the same parameter, how we have to make it. So this is what done, and ultimately सब देखिए एनुअल रिपोर्ट है बट ऑडिटेड होगा, सेम एनुअल रिपोर्ट है अनऑडिटेड है बट मैंडेटरी होगा, क्वार्टरली रिपोर्ट विलिंगली है, और पीरियड नॉर्मली 12 मंथ्स का पीरियड रखा गया है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में 15 मंथ्स का पीरियड हो सकता है, और विद वेरी वेरी स्पेसिफिक months, but beyond that not allowed. Point number 1, as an analyst, be very vigilant, very careful, very serious about it. क्या आपको सीरियसनेस चाहिए? फर्स्ट सीरियसनेस इज दैट whenever you are going to act is, ब्रेन में पहला चीज होना चाहिए, जो मैं अच्छी बता रहा हूं फिर भी बता रहा हूं एज एन एनालिस्ट, कंपनी आर नॉट फेयर। इंक्वायरी करूंगा, माय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू आर रॉन्ग। ये पुलिस वाला हाल है, शक के घेरे में जजमेंट सुना दीजिए, सब शक के घेरे में हो। इज इट क्लियर? अगर ये आप नहीं करेंगे, then why you are doing analysis? Then whatever it is there, accept it. Then you don't require. You have to do analysis because you want to judge on your own way. And in the field of finance, it is very much. हमें वैल्यूएशन पढ़ना है आगे फाइनेंस में, वैल्यूएशन आए चाहे ना आए, और ये हमारा बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है। मेरे में देखते होंगे आप, खास करके कोई परचेजिंग के लिए हमारी भारत की महिलाएं तो बड़े इसमें वैल्यूएशन में स्मार्ट है। वैल्यूएशन आता ना हो, कोई भी प्राइस दे दिया है उनको, भाई साहब ठीक ठीक लगा लो, बहुत महंगा बोल रहे हो। जो बोला गया वो प्राइस था। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू है। यू मस्ट हैव हर्ड अ वर्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। तैयार करते हैं। अगर आपने वैल्यूएशन एक्सेप्ट कर लिया तो वैल्यूएशन की जरूरत ही नहीं है। अगर प्राइस किसी का 100 रुपया है, 100 रुपया है, फिर क्या दिक्कत है? लेकिन मैं कहूँ नहीं साहब, इसकी प्राइस तो 80 होनी चाहिए। जैसे ही आपने प्राइस 80 सोचा, आपके लिए नया वर्ड इमर्ज किया जो फाइनेंस में बहुत यूज करेंगे, ओवर वैल्यूड और ओवर प्राइस्ड। ओवर प्राइस्ड और अंडर प्राइस्ड वर्ड ओरिजिनेट नहीं कर सकता, जन्म नहीं ले सकता ये दोनों वर्ड, जब तक कि आपका प्राइस नहीं हो, आपका अपना वैल्यू ना हो। आप कंपेयर किससे कर रहे हो? ओवर वैल्यूड, राइट? तो इसका मतलब वैल्यूएशन करोगे। तब क्वेश्चन उठता है वैल्यूएशन कर कहां से लिया? हाउ यू कम टू नो? You will find out. We will require our statement balance sheet there. यहां से वैल्यू निकालेंगे। वो जो पर्पस फाइनली है, whether this share is TCS is right now at 3400, मैंने बोला ऐसे ही बोल दिया, आप लोग अपना प्राइस देख लेना, किसी का भी है, किसका क्या शेयर है। अब मैं सोच रहा हूं कि नहीं जी, मेरे हिसाब से ये तो 3800 तक जाना चाहिए, मार्च तक में तो 3800 होना चाहिए। क्या होगा? बाई सिग्नल, यस और नॉट? 3400 का है, 3800 होना चाहिए, बाई सिग्नल है। ये 3800 होना चाहिए, ये कहां से आपको पता चला? तो टीसीएस का पूरा रिपोर्ट देखेंगे, उसकी पोटेंशियल को देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे, और ट्रांसलेशन इनटू वैल्यू देखेंगे। समझ रहे? एनालिसिस क्यों चाहिए? वरना फिर क्यों कर दें?
अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप 3400 पे आप खरीदना चाह रहे हो क्योंकि 3800 पे जाएगा, आपको बेचेगा कौन? कोई ना कोई तो होल्डर होगा, सेकेंडरी कोई ना कोई होल्डर होगा। वो क्यों बेचेगा? बिकॉज उसके कैलकुलेशन में हो सकता है 3400 अपर लिमिट हो, राइट? एंड दिस conflict of calculation, differences of calculation, conflict of to the market, movement to the market. Otherwise, financial market, stock market is impulsive in nature. It is not a medicine that you have to buy. You are buying willingly. It is going to have another situation, different satisfaction. है या नहीं है? और मालूम है ये होना नहीं है, सिर्फ एक ही सेटिस्फैक्शन है। क्लियर? इन फैक्ट एनालाइज कर रहा होगा, एक्सेलेंट, बट अनफॉर्चुनेटली दे फाउंड दैट आफ्टर सम ईयर दे आर कोलैप्स्ड। अब मैं कहता हूं कि मैंने सेल्स बहुत हाई कर दिया। पहले मैं आपको इनकम स्टेटमेंट बता देता हूं। एंड मैं कम से पूछना चाहता हूं, आप लोग एंजॉय कर पा रहे हो? ये तो नहीं लग रहा है कि साहब हम तो पढ़ के आए, क्या फिर रिपीट कर रहे हो? साइंस वालों का क्या हाल है, समझ में आ रहा है? हाँ, ऊपर से जा रहा है, नीचे उतर के बोलो या बैठ के बोलो। ऐसा नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल सिंपल थिंग। जो टर्म मैं बोल रहा हूँ ना उसको आप नोट कर लीजिए, थोड़ा गूगल को भी तंग करो यार, ठीक है? अब देखिए, मैं इनकम स्टेटमेंट पे आपको एक जर्नी करवाता हूं। दैट इनकम स्टेटमेंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले सेल्स है, दिस साइड व्यू विल बी बेटर आकाश। सेल्स है, मैं कोशिश कर रहा हूं अल्टीमेटली। इससे भी पहले एक और पॉइंट बताता हूं, एनालिसिस की सारी तैयारियां पहले हो जानी चाहिए। वंस एवरीथिंग इज रेडी देन वी विल lit the stove to cook the food, right? क्या है इससे पहले, what exactly are our main objective as a business house? What is the, if I say you are a business person, you are a rational economic person doing some business activity, what should be your prime objective or only objective? Other objective I'll call peripheral objective। और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछूं, आप बताइए, व्हाट्स योर नेम? इंदू, बैठ के, कोई बात नहीं, बैठ के बोलिए। आप अगर बिजनेस चला रही हैं तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा? रेवेन्यू जनरेशन। रेवेन्यू तो जनरेट होगा, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर हो गया, लॉस में चले जाएंगे। अरे कुछ नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है तो फिर कुछ और सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बट अभी आई एम टू यंग टू गो फॉर सोशल ऑब्जेक्टिव। माय ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये फिलैंथ्रोपिक एक्सरसाइज खूब प्रॉफिट जब हो जाता है ना, तो उसका तो उस स्टेज पे जाने के बाद होता है, राइट? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। व्हाट इज प्रॉफिट? हाउ टू डिफाइन प्रॉफिट? प्रॉफिट इज बेसिकली कॉस्ट। दिस इज व्हाट कॉल प्रॉफिट, यस और नॉट? प्रॉफिट मैक्सिमम का प्राइस इंटू क्वांटिटी, पी इंटू क्यू इज रेवेन्यू। प्राइस इंटू क्वांटिटी लो या क्वांटिटी बढ़ा लो या दोनों बढ़ा, पूरा इकोनॉमिक्स आ जाता है इतने में, सारा इकोनॉमिक्स यहां समा गया। is not determination of price, looking into elasticity, looking into cost function, looking into market condition, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। उठा के सिलेबस देख लो, एक इक्वेशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ आ गया। और अगर मुझे सपने में कन्हैया आके बोले कि बेटे आज प्राइस ऊपर कर लो, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं कर लूंगा, सारा आपका पढ़ना बेकार, फिर भी मैं बेहतर रहूंगा, ऐसा होता नहीं, इतना पायस हूं नहीं, राइट? तो पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स वही है। बट ऑब्जेक्टिव क्या है? रेवेन्यू को हाई करना, राइट? दैट इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। मेरा पर्पस अकाउंट समझना नहीं है, मेरा पर्पस है मैं जो डिसीजन लेने जा रहा हूं वो डिसीजन इफेक्टिव होगा नहीं होगा। अगर मैं प्राइस बढ़ा दिया
और मालूम कस्टमर मेरे भाग गए, आई एम लॉस, यस और नॉट? दैट इज व्हाट आई हैव टू क्रॉस चेक. Is there any substitution effect available to me or not? How much price control, degree of competitiveness in the market? If degree of price control is perfect, it is monopoly market. अब ये मुझे समझने की जरूरत होगी. तो रेवेन्यू को ऊपर करना तो भाई बस होते होते की बात नहीं है. तब क्या फोकस कर सकते हो? क्वांटिटी बढ़ाइए, कस्टमर को खुश करेंगे. क्वांटिटी कैसे बढ़ेगा? अब आपको समझना पड़ेगा. नया जनरेशन है, न्यू मिलेनियल हाजिर है, उनका प्रेफरेंस क्या है, अकॉर्डिंगली नाउ एंटायर मार्केटिंग पेपर विल कम इनटू पिक्चर. ठीक है, वहां आपको कंज्यूमर बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सब आना शुरू हो जाएगा. कैसा क्या पसंद है उनकी. बड़ी कॉस्टली चीज है. जैसे आप सपोज करो कार खरीद, और कार में भी कॉस्ट, डिसीजन कौन, take decision, but it is unfortunately not found in the survey. It is found from the age group of 8 kind of car will be there. पैसा नहीं देना है, पापा यही कार आनी चाहिए. पापा सिर्फ चेक पे साइन करके. ताज्जुब लगता है. कभी बाइक पे 4 की सवारी भी कोशिश करते थे यार, 2 भी महंगा है. जी को हैंडल कर रहा है, लेकिन आता कैसे है? आप सेल्स डिसीजन लेंगे, कैसे क्वांटिटी बढ़ाएंगे. यहीं पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्कोप और इकोनॉमीज ऑफ डेंसिटी वर्क करता है. यू अंडरस्टैंड? ये इकोनॉमिक्स में है, इसलिए अभी फिलहाल छोड़ रहा हूं आपको इस टर्म को. ये टर्म इंपॉर्टेंट है, आप कैसे फायदा उठाएंगे. 3 चीजें मैंने बताया आपको, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्कोप एंड डेंसिटी. ऑल these 3 terms are you feel how best you can take a decision. You are an informed manager who can take a right decision. And if you are working people, you can start from day one. Now I'll be always an informed decision maker, so that my strategy should be very robust and sustainable. Right? That's the objective. या दूसरा कॉस्ट कम कर, तो फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, बाय करें, लीज पर ले लें, पूरा का पूरा मेथड आ जाएगा. आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बाइंग वर्सेस लीजिंग. क्रय पे क्यों, अगर अच्छा बहुत कॉमन है, कुछ जगह तो कॉमन है, हम जानते हैं. अगर आपको किसी दूसरे शहर में 1 सप्ताह के लिए जाना है, 1 महीने के लिए जाना है, आप वहां मकान बनवा लोगे, खरीद लोगे मकान, तो बाइंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा? लीजिंग. राइट? घर में शादी है, बारात लेके जानी है, 50 लोगों के लिए बस चाहिए, खरीद लो बस, अरे कॉस्ट में डाल दो. 4-5 लोग गेस्ट आ रहे हैं, थोड़ा सा स्वीट्स भी चाहिए, खाना घर में बना लिया, स्वीट्स बाहर से मंगा लिया. यही करते हैं ना. क्या गुड कॉम्बिनेशन है आपका, मेकिंग वर्सेस परचेजिंग फ्रॉम आउटसाइड. वी अंडरस्टैंड दिस. इसी को थोड़ा सा इंटीग्रेट कर दो ना बड़े स्केल पे, और वहीं पे देखोगे किसी भी विलेज में, किसी भी बड़े फंक्शन में जाओगे, मालूम हुआ उनको गुलाब जामुन बनाना, सब कुछ बनाना वहीं बना लेते हैं वो, क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है. वो फिर बाहर से परचेज करेंगे, सब महंगा पड़ जाएगा. यस और नॉट? अदरवाइज हल्दीराम वगैरह तो रेडी है, आपको जितना चाहो सप्लाई करने के लिए, ऑर्डर पहले प्लेस कर दो. लेकिन नहीं, आप चाहो उसको घर में बना लेना. क्यों? क्योंकि नाउ एट दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. तो भी है, सिर्फ हम अपने हैबिट को, अपने अंडरस्टैंडिंग को, जो जन्मजात हमारे अंदर लेना है. अकाउंटिंग कहीं बाहर से नहीं आ रहा है. This is what the understanding is. We have a practice. Take this example. Buying versus leasing. Right? We can create that. So, we can reduce it. Ultimately, profit maximization को. अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो इसमें अब यहाँ पे जर्नी जो बताना चाहते थे, सेल्स विच इज रियल careful in this first information. We have to be careful that sales should be as high as possible. This is the beginning. Sales मेरा बहुत हाई हो गया, but my expenditure
या एक राइट, तो मैं व्हाई आई शुड टेक द इकोनॉमिक्स रूट, आई विल गिव यू अ टर्म कॉस्ट माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस कर दो। ये आपके हाथ में है कितना कॉस्ट होने जा रहा है, पूरा मैनेजमेंट इसी पे डिपेंड करता है। ये कहते हैं ना घर में, इनकम तो आ गया, अब एक्सपेंडिचर कितना है, एंड दैट विल डिसाइड हाउ मच सेविंग विल बी देयर इन योर हैंड, यस और नॉट। यहाँ भी बताऊं, हमारी माँ, ग्रैंड मदर, ये सब बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी वो लोग सेविंग इतनी करती थी कि जरूरत पड़ने पे बैकबोन की तरह खड़ी हो जाती थी परिवार के लिए, है ना। और आप आज के जनरेशन से बेहतर था। आज का जनरेशन तो मैं देख रहा हूँ, सैलरी पैकेज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और अगर 2-3 महीने बेंच पे बैठना पड़ना, तो सब कॉर्पोरेट वाले होंगे, खाली बैठना। कंपनी ने बाय बाय कर दिया, दूसरी कंपनी ने गेट नहीं खोला, वो 3 महीने में उनकी हालत इतनी खराब हो जाती, डिमांड भी पड़े होंगे, एंड डिमांड फॉर मनी, ट्रांजेक्शनरी मनी, प्रिकॉशनरी मनी एंड स्पेकुलेटिव मनी। सर स्पेकुलेशन सिर्फ पॉजिटिव थोड़ी होता है, स्पेकुलेशन नेगेटिव भी तो हो सकता है। फाइनेंस में उसको स्टॉप लॉस कहते हैं, पढ़े हैं ना। तो भाई आप अपने लाइफ में नहीं निकाले। अगर एक था कैब लाइफ की, भाई वीक में एक बार अगर नहीं गए बाहर खाने, डिनर बाहर नहीं हुआ, तो क्या लाइफ स्टाइल है। मालूम हुआ उस चक्कर में ऐसा हो गया कि 3 महीने बैठना पड़ गया, तो किचन बंद हो गया अपना। नो, दैट्स अ बैलेंसिंग वन, कंपनी ऑल्सो वर्क्स अकॉर्डिंगली। Why I say these things? As you progress, you'll find out. I'll give you example. Mukesh Ambani is a very successful businessman. Anil Ambani is a flop. Whereas in 2006, both had started at the same division. And rather, Anil Ambani had started with the latest business. Had huge potential. क्या बीत गया भाई, उसी परिवार का तो वो भी हिस्सा था, और 3 लाख करोड़ का बेस पे स्टार्ट किया था, 10 साल नहीं चला पाया अपने बिजनेस को। ऐसी क्या गड़बड़ी हो गई। जयप्रकाश गौड़, वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस हाउस, जेपी, पेपर था, कंस्ट्रक्शन था, सीमेंट था, पावर था, और आज उसका बेटा सो कॉल फॉरेन से पढ़ा हुआ, ये स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड वाले सारे हैं, और एनसीएलटी में लेके चले गए, सब जानता है। एक एक कंपनी, एक एक बैंक, उनका एक एक बिजनेस एब्जॉर्व कर ली, फिर भी पूरा का पूरा कर्ज नहीं चुका पाए। विजय माल्या, लुक इनटू द एग्जांपल। इसका मतलब कि ब्लंडर्स हैं, और आपको देखना है। आज फुर्सत में कभी मौका निकाल के एनसीएलटी के साइट पे चले जाइएगा, आपको कंपनी का लॉन्ग लिस्ट मिलेगा ना, क्या बात है भाई। और इंटरेस्टिंगली बड़े बड़े क्वालिफिकेशन, यंग जनरेशन है, जिसके पेरेंट्स ने, जो हो सकता है ऐसे पॉलिटिकल साइंस है, बीकॉम, मैं बड़े कॉन्फिडेंटली कहता हूं, डोंट अंडरस्टिमेट योर सेल्फ, डोंट गो थ्रू कि आई एम नॉट फ्रॉम दैट बिग नेम। मैंने बहुत
पोज करूँ ऐसे? आपका इक्विटी है, इस पर बात करें कोई चीज ऑनेस्टली फंड या बोरो, मैं कह रहा हूँ बोरो फंड क्यों नो बोरो 100% इक्विटी ऐसे हो जाएगा ना, आप बोरो नहीं इसके बाद सब चेंज कर। एम क्लियर? आप बोरो नहीं किए हो, बोरो किए हो तो इंटरेस्ट पे करोगे। पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है। अब आपको बताने के लिए कहता हूँ, 98 में मैं स्टील अथॉरिटी का एनालिसिस कर रहा था। स्टील अथॉरिटी के ही इनविटेशन पे कर रहा था। अरविंद पांडे वाज द चेयरमैन ऑफ दैट टाइम। स्टील अथॉरिटी आप समझ सकते हैं, प्योर पब्लिक सेक्टर, ह्यूज लॉस, पूरा लॉस पे बैठा हुआ था स्टील अथॉरिटी। और लॉस इतना था, उनका टोटल जो 8,500 करोड़ का कैपिटल था, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व, जिसमें 4,600 से ऊपर लॉस हो चुका था, क्यूमुलेटेड लॉस। 50% ऑफ देयर नेटवर्थ हैड बीन इरोडेड। और जब उनकी एनालिसिस करने लगा, उनका सेल्स में कोई दिक्कत नहीं था, कॉक्स में कोई दिक्कत नहीं था, दिक्कत क्या था? ओवर इंटरेस्ट बर्डन। इंटरेस्ट ईबीआईटी तक पॉजिटिव था, और ईबीआईटी से जैसे ही ईबीटी पे आते थे नेगेटिव हो जाता था। इंटरेस्ट इतना हाई हो गया। और बात कब उठी? उनका मेन कॉर्पोरेट बैंकर पीएनबी था। जब उनका मैंने बैलेंस शीट एनालाइज करना शुरू किया, आई वॉज इनवाइटेड। हिंदुस्तान लीवर की जो हिंदुस्तान टाइम्स की जो बिल्डिंग है, आप कनॉट प्लेस में देखोगे, उसके 9th फ्लोर पे उनका ऑफिस होता था। उसी ऑफिस में बैठ के उनके ही फाइनेंस ऑफिसर्स के सामने जब मैंने एनालिसिस स्टार्ट किया और बताया कि साहब ये तो आपका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, बाद में उसको मैंने क्लास में जो जोक भी ले लिया कि अगर इंडिया में कितने बैंक काम कर रहे हैं अगर देखना है तो स्टील अथॉरिटी का बैलेंस शीट देख लो, सबसे लोन ले रखा है। आप समझ सकते हैं, सबसे लोन लिया, नहीं दे पाया, लॉस होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद हुआ कैसे इसको रिवाइव करेंगे। मतलब सर रिवाइवल तो तब करोगे ना जबकि आपका सेल्स खराब होता। आप डांटना है तो प्रोडक्शन मैनेजर को नहीं डांटेंगे आप, वो तो अपना काम पूरा कर रहा है। आपका फाइनेंस मैनेजर जो है उसको उठाकर डांटो जितना डांटना है। समझ रहे हैं कितना मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप उसको क्यों बोलोगे भाई, वो तो आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है। आपने पैसा कहाँ खर्च किया हो आप जानो। आप ब्लाइंडली, होता है क्या है जब एक बार डेट ट्रैप में फंसते हैं, इंटरेस्ट पे करने के लिए क्या क्या फिर बोरो कर लिया, ये ट्रैपर है। पहली बार आप इंटरेस्ट नहीं दे पाए, इंटरेस्ट इज अ लीगल लायबिलिटी, आप उसके लिए बोरो किए, और अनफॉर्चुनेटली आपके सोच में, आपके मैनेजमेंट स्टाइल में चेंज नहीं आया, तो क्या होगा? बर्डन बड़ा हो जाएगा फिर। क्लियर? फिर और वो धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा कि इंटरेस्ट अमाउंट इतना बड़ा हो जाएगा, वो बड़े लोन के बराबर हो जाएगा। अच्छा आप लोन नहीं पे करेंगे, टाइम होगा ना, बैंक कहेगा भाई पुराना लौटाओ तभी मैं आपको दूंगा। And entire that debt had been digested by government because it was a public sector. Had it been a private sector, आज हम स्टील अथॉरिटी को एक इतिहास मानते। Getting my point? So this is the way we have to, where management has missed. So what we are looking here is, अब समझ में आ रही बातें कि कैसे जा रहा है इंटरेस्ट बर्डन, आप कहां पे कितना लेके जा रहे हो। अच्छा लास्ट एक्सपेंडिचर इज टैक्स। अगर टैक्स है, नॉर्मली जानते हैं 30% टैक्स रहता है, प्लस सरचार्ज होता है। अब धीरे धीरे ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, 25% कर रही है। आप स्टार्टअप बिजनेस हो तो 15% टैक्सेशन है। ये सब अब आपको कॉन्सेप्चुअली, और हो सकता है कि आप वैसे किसी जोन में हो जहां टैक्स है ही नहीं, चले जाओ एसईजेड में, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका बिजनेस है और 10 साल में 3 साल आपको माने जो प्रॉफिटेबिलिटी का है, आप अपने हिसाब से टैक्स मत दो। तो जो सबसे बेस्ट वाला जो प्रॉफिट हो उसमें टैक्स मत दो। गवर्नमेंट ने आपको एग्जम्प्ट कर रखा है, टैक्स बेनिफिट, टैक्स हॉलिडे दे रखा है। 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जितने भी 100% ईओयू मींस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, वैसा बिजनेस हाउस जो सिर्फ एक्सपोर्ट से कमा रहा है उसको 10 साल। गवर्नमेंट का निशाना कहीं और था कि फॉरेन करेंसी लाओगे, कंट्री की हालत खराब है, करेंसी फॉरेन करेंसी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसी में, ये अलग बात है कई गलत तरीके से भी
फॉरेन से ही अपना ही पैसा घूम घूम के आना शुरू हुआ, विच वॉज कॉल्ड एज हवाला, राइट। बट गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो कीपिंग मम कि यार कोई बात नहीं, तुम चोरी करके लाओ, जैसे करके लाओ, मुझे तो दो, कंट्री हैज टू ग्रो, कंट्री हैज टू बी सस्टेन। एग्जैक्टली हमारी 91 में वही हाल था जो अभी पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल कह सकते हैं ना कि बैंक्रप्सी पे खड़ी है, राइट। ये श्रीलंका ऑलरेडी बस्ट आउट हो चुका है, क्लियर। तो ये जो पूरा का पूरा है, ये जो चीज मैं एक इंडिविजुअल हाउस के लेवल पे, एक इंडिविजुअल फैमिली लेवल पे बोल रहा हूं, वही कॉर्पोरेट लेवल पे है, चाहे वो बड़ा पीएसयू लेवल हो, मल्टीनेशनल हो, और वही चीज कंट्री के लिए एप्लीकेबल होता है। कंट्री को भी बहुत संभाल के चलना पड़ता है, अदरवाइज कंट्री कैन ऑल्सो फ्लॉप, राइट। अब इसके बाद देखेंगे कि ये जो आ गया टैक्स देना है, देयर इज अ टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑल्सो, बट टैक्स मैनेजमेंट डजंट मीन टैक्स इवेजन, इट इज नॉट इवेजन। मेक श्योर दैट वी आर लर्निंग टू मैनेज, नॉट टू इवेड। टैक्स की चोरी नहीं करनी है, जहां जहां टैक्स सेविंग की बेनिफिट्स है, उस बेनिफिट्स को उठाना है और उससे मैनेज करके निकालना है। एंड अंडरस्टैंड, अगर मैं कुछ वैसे जगह बिजनेस कर रहा हूं या वैसा बिजनेस कर रहा हूं जिस बिजनेस में मुझे टैक्स एग्जम्पशन मिल रहा है, अगर 30% टैक्स है, इसका मतलब 3 साल मुझे एग्जम्पशन मिला, तो एक पूरे साल के प्रॉफिट तो मुझे बैठे बिठाए मिल गया। 3 साल में 4 साल की प्रॉफिट आ गई है या नहीं है? थिंक लाइक दैट. So deciding the location of the business is also very important, where to put your business so that you can have the benefit. These are the decisions, because tax is related to account. लेकिन business decision तो करना पड़ेगा. Clear? अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट, अभी क्या होता है, करना पड़ेगा. सेल से नेट प्रॉफिट तक की जर्नी मैनेजर हैंडल करता है. अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट, अभी क्या होता है, करना पड़ेगा. सेल से नेट प्रॉफिट तक की जर्नी मैनेजर हैंडल करता है. अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट करता है. सेल से नेट प्रॉफिट तक की जर्नी मैनेजर हैंडल करता है. अब यहाँ पे एम्प्लॉयड जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट करता है. और जब ऑनर नहीं करता है, तब इसके बाद अब यहाँ एम्प्लॉयड जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट करता है. और जब ऑनर नहीं करता है, तब इसके बाद दोनों में झगड़ा होता रहता है. और ये झगड़ा बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, दोनों में झगड़ा होता रहता है. इसको कहते हैं, और ये झगड़ा बहुत इंटरेस्टिंग एजेंसी प्रिंसिपल में झगड़ा होता रहता है. एजेंट इसको कहते हैं, और ये झगड़ा बहुत इंटरेस्टिंग एजेंसी एजेंसी एजेंट इसको कहते हैं. और ये झगड़ा, मैं किसी कंपनी का एजेंसी वाइस प्रेसिडेंट सीईओ, मैं किसी कंपनी का, और मैं डिसाइड कर रहा हूँ. कॉग्स कौन डिसाइड करेगा? वही करेगा. सीईओ मैं किसी कंपनी, और प्रिंसिपल कौन है, मेन कौन है, शेयर होल्डर. वो कहते हैं क्या फालतू खर्चे कर रहे हैं कॉग्स, और प्रिंसिपल कौन, इसको घटाओ. क्योंकि आप गौर करके देखोगे, कॉग्स घटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा. खर्चे कर रहे हैं कॉग्स, और प्रिंसिपल कौन, इसको घटाओ. क्योंकि आप गौर करके देखोगे, कॉग्स घटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा. वही केयर करना है हमें, तो ये देखना है, इसको वो देखना है. क्योंकि आप सारे खर्चे होने चाहिए, अब वहां पे करना है हमें, तो ये वहां पे कैसा है, तुम यार लेके जा रहे हो कैसे, अब बिजनेस क्लास में कैसे भेज दिया हमें, तो ये वहां पर क्लास में तुम यार लेके जा रहे हो, राइट. कैसे क्या जरूरत है क्लास में बाहर करने की, ऑनलाइन पर क्लास में तुम यार लेके, तो ये भी हो, राइट. कैसे ऑनलाइन जरूरत है, वी कांट अफोर्ड, एक सर्कुलर निकलता है ऊपर से, तो ये भी हो. थोड़ा बहुत आज के डेट में जरूरत है, वी कांट अफोर्ड, एक सर्कुलर निकलता है. इसके पीछे कारण ये है, तो ये जो थोड़ा बहुत डायरेक्टर होता है या सीईओ होता है, सर्कुलर निकलता है. इसके पीछे कारण ये है, तो ये जो थोड़ा बहुत, तो उसके बाद सोचना सीईओ होता है, एक्टिव सैलरी भी उठाता है. कारण ये है, तो ये जो थोड़ा बहुत, और शेयर होल्डर देखना सीईओ होता है, वहां पे लगता है सैलरी भी उठाता है. कारण ये है, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, टैक्सेशन का हिस्सा आएगा, लेकिन एंटरटेनमेंट दें या ना दें, इस पर बड़ा एंटरटेनमेंट अलाउंस. अब अगर भी मान टैक्सेशन का हिस्सा आएगा तो आएगा. ये दिसंबर महीने में आपको जनवरी महीने में ऐसी बक्का पेमेंट दें या ना दें, इस पर बड़ा एंटरटेनमेंट अलाउंस. अब 200 किलोमीटर चले हो, 2 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा हो गए, इसके वाला 400 रुपए बच सकता था. दिसंबर महीने में आपको जनवरी महीने में ऐसी बक्का पेमेंट में 400 रुपए लगता है, बड़ा एंटरटेनमेंट अलाउंस. 200 किलोमीटर चले हो, 2 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा हो गए, इसके वाला 400 रुपए बच सकता था. चाय पीने पिलाने का खर्च हो सकता है, 25,000 रुपए लगता है, बड़ा एंटरटेनमेंट अलाउंस. 200 किलोमीटर चले हो, 2 रुपए ज्यादा